کسی کو کیا الزام دوں صاحب، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے، دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ اپنی اندھیری قبر کو روشن کرنے کی تیاری کریں صاحب۔ آج زندہ انسانوں سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی میں پڑے مردوں کے لیے دعا کون کرے گا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی قبرستان میں آتے تو اتنا روتے خون کے آنسو رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھ لیا، حضرت آپ امیر المومنین ہیں، آپ جب جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں، جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں، اس وقت تو آپ نہیں روتے، لیکن آپ جب بھی قبرستان میں آتے ہیں، کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ زاروں قطار کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ پوچھنے والے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے۔ جوانوں، کہاں گئے وہ لوگ جو اکڑ کر چلا کرتے تھے، جن کے اندر فخر اور غرور کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا تھا، جو اپنے بدن پر چٹکی مٹی کی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے؟ ہائے، آج ان کے کفن بھی تار ہو گئے ہیں، آج ان کا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا، آج ان کی ہڈیاں بھی گل گئیں، ان کی کوٹھیاں، بنگلے، محل قبر میں تبدیل کر دیے گئے۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ بولا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ آپ ذرا اپنے ذہن پہ زور دیں، گلی محلے کے لوگ، عزیز و اقربا، دوست، رشتہ دار، آباء و اجداد، اگر یہ ساری فہرست اپنے ذہن پہ لائیں تو ایک دم خیال آتا ہے، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ جوانوں، اگر وہ چلے گئے ہیں تو رہنا یہاں ہم بھی نہیں ہیں۔ جوانوں، آج ہمارے پاس وقت ہے مالک کی چوکھٹ پہ آنے کا۔ جوانوں، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، جوانی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ اوے، مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہے۔ زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، بابا جی کتنی عمر ہے آپ کی؟ تو بزرگ نے کہا، بیٹا ہے کوئی 14-15 سال۔ نوجوان نے کہا، بابا جی لگتا ہے آپ کو جوان ہونے کا کچھ زیادہ ہی شوق چڑھ گیا ہے، 15 سال عمر آپ کی۔ اس بابا جی نے کہا، نہیں بیٹا، جب سے توبہ کر کے اللہ سے صلح کی ہے نا، 15 سال گزر گئے۔ بیٹا، زندگی تو وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے، مالک کی دہلیز سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی، اس کو میں زندگی کیسے کہوں؟ وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے، اس کے بدلے تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، اگر دنیا میں بھی تجھے 3 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اگر تو علل اعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اگر تو اس بات کا علل اعلان اقرار کر لے تو دنیا میں بھی تجھے 3 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ مجھے بتاؤ، شاید ان عمدہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے اسلام لانے سے سینکڑوں لوگوں کے کفر کا تالا ٹوٹ جائے۔ مجھے بتاؤ وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرمایا، اگر تو علل اعلان اقرار کر لے، اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا، ہمیشہ صحت مند رہے گا، موٹا تازہ رہے گا، بیمار نہیں ہوگا۔ پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی۔
दूसरी नेमत ये अता होगी कि अभी तू एक मुल्क का बादशाह है, लेकिन इस्लाम लाने के बाद तुझे 2 मुल्क अता होंगे। ये मुल्क तुझे अल्लाह ताला से बगावत करने की हालत में मिला है। जरा सोच, इताअत इलाही की हालत में क्या कुछ नहीं मिलेगा। जिसके फजल ने तुझे तेरे जुल्म की हालत में इतना कुछ दिया है, उसकी वफा की हालत में तुझे क्या कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरी नेमत तुझे ये मिलेगी कि तू हमेशा के लिए जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा, यहाँ तक कि तेरे बाल भी सफेद नहीं होंगे, काले ही रहेंगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बात सुनकर फिरौन का दिल बहुत ही मुतासिर हुआ। उसने कहा, मूसा मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जाके अपनी अहलिया से मशवरा कर लूं। उसके बाद फिरौन घर गया, अपनी बीवी हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा से इस मामले में गुफ्तगू की। तो हजरत आसिया ने कहा, जल्दी करो, इस वादे पर अगर जान भी कुर्बान करना पड़े तो देर ना करना। ए फिरौन, जब खेती तैयार हो तो काटने में देर नहीं करनी चाहिए। ये सौदा बहुत ही मुफीद है। अब तक जो वक्त गुजरा है बेफायदा ही गुजरा है। तुझे मुबारक हो, खुर्शीद तेरे सर का ताज हो, बुलंदी तेरा मुकद्दर बन जाए। ए फिरौन, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुझे ये ऑफरें देकर तेरे बुराइयों की पर्दा पोशी की है, तुझ पर एहसान किया। ए फिरौन, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तुझे दावत दी है, ये कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है जिससे तुम्हें किसी से मशवरा करना पड़े, फौरन ही कबूल कर लो। ए फिरौन, ये इनायत तुझ पर खुदा की ऐसी है जैसे इब्लीस लईन पर रहमत होने लगी हो। ये हक ताला का कोई मामूली करम नहीं है कि तुझ जैसे सरकश और जालिम को भी माफ कर दे। तू सोच विचार ना कर, एक आंसू को फौरन ही बहा दे और अपने नफ्स को झुका दे। बीवी की ये बातें सुनकर, बीवी का ये मशवरा सुनकर फिरौन ने वही नापाक अल्फाज फिर से दोहराए, अच्छा फिर मैं अपने वजीर हामान से मशवरा कर लूं। ये सुनकर आसिया ने कहा, अपने वजीर हामान से मशवरा कभी न करना, उसके आगे इस बात का जिक्र भी न करना, इसलिए कि वो इसका अहल नहीं है, इसलिए कि ना अहल के वजीर भी ना अहल ही होते हैं। हर शख्स अपने हम जिन से ही मशवरा लेना पसंद करता है। अलगर्ज फिरौन ने हामान से सारी बातें कह डाली और हामान से मशवरा मांगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हामान लईन ये मशवरा सुनकर लाल पीला हो गया, गुस्से में आकर आग बगोला हो गया, अपना गिरबान फाड़ डाला। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, रोना धोना शुरू कर दिया, अपनी दस्तार को जमीन पर पटक दिया। कहने लगा, हाय, आपकी शान में मूसा ने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। नऊजुबिल्लाह, आपकी शान तो ये है कि तमाम कायनात आपकी मस्खर है, मशरक से मगरिब तक सब लोग आपके पास खैराज लेके आते हैं। मेरे सरताज मूसा ने आपकी सख्त तरीन गुस्ताखी की है, लिहाजा उसको इसकी सजा देनी चाहिए। आप तो खुद पूरी दुनिया के माबूद हैं, पूरी दुनिया के खुदा हैं। नऊजुबिल्लाह, क्या आप मूसा की बात मानकर एक अदना गुलाम बनना चाहते हैं? मेरे सरताज, अगर मूसा की बात ही माननी है, अगर इस्लाम कबूल ही करना है तो पहले मुझे मार डालो, फिर इस्लाम कबूल करना। कम अज कम मैं आपकी ये तौहीन अपनी आंखों से तो ना देख सकूं कि आसमान जमीन बन जाए और खुदा बंदा बन जाए। हामान मलऊन के मशवरे से फिरौन ने कबूल इस्लाम से इनकार करके खुद को दायमी रुसवाई और अजाब के हवाले कर दिया। जब फिरौन हामान लईन के बहकावे में आ गया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया, इस्लाम कबूल ना किया, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ फिरौन, हमने तो बहुत ही सखावत और इनायत की थी, मगर अफसोस, सद अफसोस, ये गोहर नायाब तेरे मुकद्दर में ही नहीं था। जवानों, इस वाक़ये से हमें एक नसीहत मिलती है, वो ये है कि इंसान को कभी भी किसी नाअहल से मशवरा नहीं करना चाहिए। मशवरा हमेशा उस इंसान से किया जाए जो इंसानियत का खैर खा हो, और नेक काम में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जैसे ही मौका मिले उसे गनीमत जानकर फौरन ही नेकी की तरफ राग़िब हो जाना चाहिए। जब शैतान ने कहा, या अल्लाह, मैं औलाद आदम को आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ हमले करूंगा, ये सुनकर फरिश्ते हैरान और परेशान हो गए। मेरे अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कहने लगे, या अल्लाह, अब तो औलाद आदम के लिए बड़ी ही मुश्किल सी बन गई है कि वो इस शैतान मरदूद के हथकंडों से कैसे बच सकेंगे। ये सुनकर मेरे अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, परेशान होने की क्या जरूरत है? इस शैतान ने 4
4 सिम्मतों का नाम लिया है, आगे पीछे दाएं बाएं 4 सिम्मतों का नाम लिया है, मगर ये नादान ऊपर और नीचे वाली सिम्मत भूल गया है। फरिश्तों, जब मेरा बंदा अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर, गलतियों और खताओं से शर्मिंदा होकर मेरे दरवाजे पे आएगा, अपने गुनाहों की माफी के लिए जब दोनों हाथ उठाएगा, जबकि ऊपर वाली सिमत से, ऊपर वाले रास्ते से शैतान हमला आवर नहीं हो सकेगा। फरिश्तों, गवाह रहना, अभी मेरे गुनहगार बंदे के दोनों हाथ नीचे नहीं आएंगे, मैं इनके गुनाह पहले माफ कर दूंगा। और हाँ फरिश्तों, जब कभी मेरा बंदा अपने गुनाहों पे नादिम होकर, शर्मिंदा होकर मेरे दरवाजे पे आएगा, मेरी चौखट पे आएगा, गुनाहों की बख्शिश के लिए अपना सर सजदे में रखेगा, जबकि मेरा गुनहगार बंदा अपना सर नीचे की सिमत पे झुकाएगा और शैतान नीचे के रास्ते से हमला आवर नहीं हो सकेगा। फरिश्तों, फिर गवाह रहना, अभी मेरा बंदा सजदे से अपना सर उठाएगा नहीं, मैं इनके गुनाह पहले माफ कर दूं। जवानों, आगे पीछे दाएं बाएं तो शैतान ने घेरा हुआ है, याद रखना ऊपर और नीचे वाली सिमत अभी महफूज हैं। शैतान ना ऊपर को हमला कर सकता है, ना नीचे हमला कर सकता है। शैतान ना हमें तौबा करने को रोक सकता है और ना ही सजदा करने को रोक सकता है। अगर तुम जानबूझकर रुक जाओ तो ये भी क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। इसलिए आज ही अपने परवरदिगार आलम की चौखट पे आकर अपना सर सजदे में रखें और अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त कर लें। ऊपर की तरफ हाथ उठाएं, तौबा की भीख मांगें, तौबा की भीख मांग कर अल्लाह से अपना मामला दुरुस्त कर लें। तो मेरा अल्लाह उसे पसंद फरमाता है जो शख्स तौबा करता है, मेरा अल्लाह उसे पसंद फरमाता है जो शख्स सजदा करता है। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। जवानों, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। एक दिन हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास शैतान आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा, मुझे बताओ वो कौन सा काम है जिसके करने से तू इंसान पर गालिब आ जाता है। तो शैतान ने कहा, या हजरत, जब आदमी अपनी जात को बेहतर समझने लगता है, जब इंसान खुद को दूसरे से आला तर समझने लगता है, या हजरत मैं ऐसे इंसान पर गालिब आ जाता हूँ। शैतान कहने लगा, या हजरत, मैं आपको 3 ऐसी बातें बता के जा रहा हूँ जिनसे आपको हमेशा के लिए डरते रहना चाहिए। शैतान कहने लगा, या हजरत, एक तो गैर महरम औरत के साथ ना बैठना, गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में हरगिज ना बैठना, क्योंकि जब कोई शख्स गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में बैठता है तो उनके साथ तीसरा मैं ही होता हूँ, यहाँ तक कि उस औरत के साथ इसको फितने में डाल देता हूँ। दूसरी बात, अल्लाह से जो अहद करना फौरन ही पूरा करना, क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह से अहद करता है तो मैं उसके दरमियान हायल हो जाता हूँ, वो अहद पूरा नहीं करने देता। तीसरी बात, जो सदका निकाला करो फौरन ही दे दिया करो, फौरन ही जारी कर दिया करो, इसलिए कि जब कोई सदका निकालता है उसे जारी नहीं करता तो मैं उनके दरमियान हायल हो जाता हूँ और सदका आगे देने नहीं देता। ये 3 बातें कहकर शैतान आगे चल दिया। थोड़ा सा आगे गया तो एकदम चीखो पुकार करने लग गया, रोने लग गया, कहता, हाय अफसोस, हाय अफसोस। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ नातान, तुझे क्या हो गया है, तो क्यों चीख रहा है, क्यों अफसोस कर रहा है? कहता है, हाय, मैंने अपनी राज की बातें आपको बता दी कि अब तुम बनी आदम को डराएगा, धमकाएगा कि वो इन 3 कमियों से बाज आ जाएंगे और मैं उन पर हमला आवर नहीं हो सकूंगा। जवानों, तुमने अपने अंदर ये जो शैतान बिठा रखा है ना, इसे निकाल दो। इस शैतान को गिरफ्तार कर लो, नहीं तो ये तुम ही गिरफ्तार कर लेगा। इस शैतान को मार दो, नहीं तो ये तुम ही मार देगा। इकबाल ने क्या खूब लिखा था कि ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, शैतान तो है जिंदा, इंसान मर गया। सजदों पे सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, मोमिन की रूह में बसा मुसलमान मर गया। अरे मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी, कच्ची है रब से चाहते, ईमान मर गया। हैरत है तेरी किस्मत पे है इकबाल, पैदा हुआ था खुशनुमा वीरान करूं। वो एक बुजुर्ग था, फकीर था, वो अपने कंधे के ऊपर एक चादर रख के जा रहा था। इतने में एक चोर दौड़ता हुआ आया, उसने इस फकीर की चादर चुराई, चादर लेकर भाग गया। अब चोर चादर लेके इस तरफ भाग रहा था, साथ में एक कब्रिस्तान था। इस फकीर ने क्या किया, कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा। किसी ने देखा, पूछा, बाबा जी तेरी भी अजीब कहानी है, और तेरी चादर लेकर चोर उस तरफ भाग रहा है, तू कब्रिस्तान की तरफ क्यों भाग रहा है?
चोर उस तरफ भाग रहा है, तू बजाय चोर के पीछे भागने कब्रिस्तान की तरफ क्यों भाग रहा है? ये सुनकर उस फकीर ने कहा, मियाँ ये चोर जहां मर्जी आए चला जाए, आखिर इसने आना तो कब्र में ही है। जब ये कब्र में आएगा तो मैं इसे पकड़ लूंगा। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाच ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, और कोई भूल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इसे हर कोई यार मुसाफिर है, कोई अज चलिया तो कोई कल चलिया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक खादिम आया करता था। वो आके सिर्फ इतना कहता, या हजरत मौत को कभी ना भूलना, मौत को याद रखना। सैयदना उमर फारूक उसको वजीफा दिया करते थे, तनख्वाह दिया करते थे। वो खादिम रोजाना आके यही कहता, उसकी ड्यूटी यही थी कि रोजाना आके कहता, या हजरत मौत को कभी ना भूलना, मौत को याद रखना। एक दिन हजरत को किसी ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आपकी दाढ़ी मुबारक का एक सफेद बाल निकल आया, एक बाल सफेद हो गया। ये खबर सुनते ही आप कांप उठे। उसी शाम को यही खादिम मौत की खबर देने आया तो हजरत ने फरमाया, मियाँ आज के बाद मुझे मौत की खबर देने तू ना आना। उसने कहा, हजरत मुझसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई? आखिर क्यों मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है? आखिर क्यों मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है? ये सुनकर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें छम छम बरसने लग गईं। आपने दाढ़ी मुबारक पे हाथ फेरा, एक सफेद बाल निकाला, सफेद बाल निकाल कर बोले, मियाँ अब तेरे आने की जरूरत नहीं है, अब तो मुझे यही सफेद बाल भी चैन से नहीं बैठने देगा, अब तो यही सफेद बाल भी मुझे मौत की खबर सुनाता रहेगा, मुझे तड़पाता रहेगा। अमीरुल मोमिनीन है, 24 लाख मुरब्बा मील के शहंशाह है, दाढ़ी का एक सफेद बाल जो निकल आया है तो आपने मौत को करीब पाया है। हमारी तो सारी की सारी दाढ़ी सफेद हो गई। और जवानों, आज तक हमने मौत की परवाह क्यों ना की, आखिरत की फिक्र क्यों ना की? विच गुनाह दे उम्रां गुजरी, दाढ़ी हो गई चिट्टी, चोरी यारीदा माल खाके आदत बन गई मिठी, लुटींदी उगड़ींदी कहीं ना डिठी, उजड़ींदी हर कहीं डिठी, पर फैज मियाँ पता उम्र लसी जदा आसी। एक नौजवान था, अपनी माँ को यतीम खाने छोड़ आया, साथ में इंतजामिया को अपना नंबर भी लिख के दे आया कि जब मेरी माँ मरने पे आए तो मुझे इतला कर देना, मैंने अपनी माँ की तदफीन अपने शहर में ही, अपनी बस्ती में ही करनी है। अल्लाह अकबर। माँ का जब वक्त आखिर आया तो इंतजामिया ने फोन किया, नौजवान मियाँ आ अपनी माँ को उठा के ले जा, माँ का वक्त आखिर आ गया है, तूने कहा था मैंने अपनी माँ की तदफीन अपने शहर में ही करनी है। तो नौजवान आया, उसने अपनी माँ को उठाया, अल्लाह अकबर लेकर जा ही रहा था तो माँ बोल पड़ी, कहने लगी बेटा मेरी आखिर में एक ख्वाहिश है, ये पूरी कर देना। बेटे ने कहा जी जी अम्मा जी बोलिए। कहने लगा बेटा ये जो यतीम खाना है ना, इसके अंदर मैंने काफ़ी दिन गुजारे, यतीम खाने के कुछ पंखे खराब हैं जो चलते नहीं, हवा नहीं देते, पंखे खराब हैं, अगर हो सके तो मेरे मरने के बाद ये पंखे सही करा देना। बेटे ने कहा अम्मा जी तू तो मर रही है, तेरा तो वक्त आखिर आ गया है, अब मैं पंखे ठीक करा भी दूं तो तुझे क्या फायदा मिलेगा। माँ ने कहा बेटा मुझे पंखे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं तो डरती हूँ कि कल जब तू बूढ़ा होगा, तेरी औलाद जवान होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी औलाद तुझे इसी यतीम खाने में आके छोड़ जाए, शिद्दत की गर्मी में तू कमरे के अंदर पड़ा रहे, अल्लाह अकबर गर्मी में सिसकता रहे। बेटा मुझे कब्र में भी नींद नहीं आएगी कि मेरा लाल गर्मी में सिसक रहा है, पंखे मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे लिए चाहिए। जिंदा माँ सूखी रोटी के लिए तरसती रही, ठंडे पानी के लिए तरसती रही, आज जब मरी है तो नंबरदार बेटे ने ऑर्डर दे दिया है कि मेरी माँ की कुलखानी पर कम से कम 50 देगें पकनी चाहिए। और नादान काश कि अपनी जिंदा माँ के मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल देता, अपनी जिंदा माँ के मुंह में रोटी का लुकमा डाल देता, माँ भी राजी हो जाती, अल्लाह भी राजी हो जाता, उसका रसूल भी राजी हो जाता। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह
اگر دنیا میں دیکھنا ہو کہ کون سا شخص جنتی ہے کون سا شخص جہنمی ہے تو شناخت کیسے کریں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جس شخص پہ اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لینا یہ شخص جنتی ہے، اور دیکھ لینا جس شخص پہ اس کے والدین ناراض ہیں خفا ہیں تو سمجھ لینا یہ شخص جہنمی ہے۔ ایک شخص نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، 7 حج کرائے، 7 حج کرا دینے کے بعد خیال آیا کہ شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر ہی دیا ہے۔ آنکھ لگی، نیند آئی، رات کو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او نادان، سخت سردی تھی، باہر برف باری ہو رہی تھی، جاڑا تھا، تو بچہ تھا، اپنی ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، تجھے پخانہ آیا، تو نے پخانہ کر دیا، بستر کو گندا کر دیا، غربت کی وجہ سے دوسرا بستر تھا نہیں۔ اللہ اکبر، ماں اٹھی، اس نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس بستر کو دھویا، تجھے بھی دھویا۔ اس کے بعد ماں نے بستر چارپائی کے اوپر بچھا دیا، خود بستر کے اوپر لیٹ گئی، ٹھنڈے بستر کے اوپر، گیلے بستر کے اوپر لیٹ گئی اور تجھے اپنی چھاتی پہ لیٹا دیا۔ اور نادان تو کہتا ہے کہ 7 حج کرا کے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، اور نادان تو ابھی اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی جتنی بھی خدمت کی جائے، جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے، جو ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ وہ میرے ایک بھائی ہیں، محبت کرنے والوں میں سے ہیں، ان کا نام تفاخر لطیف ہے، اسپین میں ان کا اپنا کاروبار ہے۔ وہ مجھے جب بھی کال کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں تو ایک ہی بات کہتے ہیں، شاہ جی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اللہ نے عزت بھی دی ہے، اللہ نے رزق بھی دیا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ماں نہیں، نہیں ہے تو ماں نہیں ہے۔ کہتے ہیں اے میرے دوست بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے، نہیں ملتا تو ماں کا پیار ہی نہیں ملتا۔ ایک شخص کی آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں اس نے اللہ کے ولی کو دیکھا کہ اس کی داڑھی یاقوت اور جواہرات سے چمک رہی ہے اور کستوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، داڑھی سے کستوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو گیا اللہ کے ولی کے پاس، اس کو جا کر اپنا سارا خواب بیان کیا تو اس اللہ کے ولی نے کہا میاں تو نے سچ کہا ہے، دراصل کل شام کو میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے